आइसोमेरिज्म पहले बताता हूं, ध्यान से समझिए बेटा। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है when two compounds have same molecular formula, same molecular formula but they have different properties, different physical and chemical properties, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो, डिफरेंट हो, देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, such compounds are called isomers and this process of having same molecular formula is called isomerism. अगर मैं बहुत सिंपल से टर्म्स में कहूं तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, CH3 CH2OH, CH3O CH3, you can check their molecular formula. This compound contains 1 carbon, 2 carbon, 2 carbon, and this compound also contains 2 carbon. This compound contains 3, 2, 5, 1, 6 hydrogen. This compound also contains 6 hydrogen, 1 oxygen, 1 oxygen. So both of these compounds have same molecular formula, but they have different properties because they have different functional group here. Then such compounds are called isomers and this process of having same molecular formula is called isomerism. अब अगर मैं बात कर रहा हूं आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की कि कितने टाइप की आइसोमेरिज्म हो सकती है, तो आइसोमेरिज्म mainly divided into two types. It is mainly divided into two types. The first one is structural एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो, दो टाइप की है। स्ट्रक्चरल में आपकी सबसे पहली आ जाती है चेन और स्केलेटल, आप चेन भी बोल सकते हो, चेन आइसोमेरिज्म, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल कौन से होती हैं? इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो सब में कॉमन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, बट स्ट्रक्चर शुड, इफ स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें सबसे पहली चेन आइसोमेरिज्म आ जाएगी। चेन आइसोमेरिज्म को एग्जांपल से समझते हैं। ये मिनिमम तब हो, चेन आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होगी जब मिनिमम 4 कार्बन एटम्स हो। 3 कार्बन एटम्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होगी। CH2 CH3 मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। इसमें इसकी अगर मैं बात करूं नाम क्या होगा? एन ब्यूटेन। और दूसरा कंपाउंड हो जाएगा CH3CH3, इसका नाम आइसोब्यूटेन। अगर मैं इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूंगा तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 4, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें 4 कार्बन की है, इसमें 3 कार्बन की है, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमर्स। तो you can define chain isomerism like this: if two compounds have same molecular formula but they have different longest carbon chain. This compound contain carbon chain of 4 carbon longest and this compound contain longest carbon chain of 3 carbon. Then such compounds are called chain isomers and this process is called chain isomerism. तो याद रखिए बेटा, N-butane and isobutane are the chain or skeletal isomers of each other. The second type in structural isomerism is position isomerism. Position isomerism. It is very simple to identify. If two compounds have same molecular formula like CH3 CH2 CH2Cl, CH3 CHCl, CH3,
but they have different positions of any prefix or suffix. If you will write the IUPAC name of this compound, the longest carbon chain of 3 carbon, numbering you will start from here 1 2 3, 1 पर क्लोरो आ गया तो 1 क्लोरो फॉर 3 कार्बन प्रोप फॉर सिंगल बॉन्ड एन. और अगर इसमें मैं बात करूं, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, नंबरिंग यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी एंड. यू विल गेट 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो आ रहा है तो 2 क्लोरो फॉर 3 कार्बन प्रोप फॉर सिंगल बॉन्ड एन, 2 chloropropane and 1 chloropropane. So these compounds have same name also, but they have different position of any prefix or suffix. The molecular formula you can check 1 2 3 carbon C3, इसमें भी 1 2 3 carbon, 3 4 और 3 7 hydrogen, 3 2 5 2 7 hydrogen and 1 chlorine. Molecular formula is same, but they have different position of prefix और एनी सफिक्स. मे भी बेटा आपको इस तरह से भी मिल सकता है, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन. तो डिफरेंस किस में है? केवल पोजीशन में. तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड इट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म. समझ में आ गई बात. थर्ड आपका है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन सी होगी? व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था, CH3CH2OH, CH3O CH3, both have same molecular formula C2H6O, but this compound contain functional group alcohol. OH is the alcohol group, while oxygen which is surrounded by 2 alkyl group is called ether. So this compound contain alcohol group, this compound contain ether group. Both have different functional group, then such compounds are called functional group isomers and it is called functional group isomerism. एक और example बता रहा हूँ, CH3CH2CHO, या हो सकता है एक और लगा दे रहे हैं आपका मन, CH2CHO. दूसरा है CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करेंगे, बिल्कुल सेम आएगा, C4H32527 इसका भी आप चेक करेंगे, यही आएगा. लेकिन अगर मैं बात करूं, इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड. CHO इज द एल्डिहाइड ग्रुप and CO is the ketone group. Both have different functional group. Then such compounds are called functional group isomers. अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन जाता है कि write the structure of functional group isomer of this compound. जैसे आपके लिए दे दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3. इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बताना है आपको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. तो आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कैसे बताओगे बेटा? आपको याद रखना है एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है ईथर और ईथर का एल्कोहल. ऐसे ही बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है कीटोन और कीटोन का एल्डिहाइड. इसमें आप पहचानिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. इसमें आपका कीटोन ग्रुप है तो इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा एल्डिहाइड CHO. अब CHO से हम आगे की बात करते हैं. CHO तो हमें पता चल गया, इसमें कितने कार्बन थे? 3. तो इसमें भी 3 कार्बन होने चाहिए. अब आप 3 कार्बन कैसे भी लगा दो, चाहे इधर लगाओ, चाहे इसके बाद इधर लगाओ, चाहे आप इधर लगाओ, चाहे इधर लगाओ. आप किसी एक ही साइड तो दिखाओगे, मैं सीधा सीधा दिखा दे रहा हूं. CH3CC, बाकी आप बैलेंसी पूरी कर लेंगे. कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बन गया. यहां पर एक बॉन्ड हो गया तो यहां पर क्या लग जाएगा? CH3. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड. यू कैन चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ द कंपाउंड. बोथ कंपाउंड हैव 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. यू कैन चेक बोथ ऑफ दीज. These are the functional group isomers. ठीक है, समझ में आ गई बात. The next one is
Fourth type is metamerism. Metamerism is a special type of isomerism in which any bidentate functional group जो दो तरफ से वैलेंसी शो कर रहा हो, वो अगर कार्बन चेन को ब्रेक कर रहा है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक और कंपाउंड लिखा मैंने CH3O CH2 CH2 CH3। अगर आप चेक करोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से सेम होगा C4H10O। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें बाइडेंटेड फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन को ब्रेक कर रहा है, इसके दोनों तरफ दो दो कार्बन है 2:2, और इसके एक तरफ 1 है और एक तरफ 3 है। तो जब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बाइडेंटेड हो, जो कार्बन चेन को ब्रेक कर रहे हो, अगर इनके दोनों वैलेंसी से जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप्स दोनों कंपाउंड्स में अलग अलग होते हैं, तब ऐसे कंपाउंड्स मेटामर्स होते हैं एक दूसरे के। इनको हम क्या कहेंगे? मेटामर्स। मींस अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी और इसकी दोनों की, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? मेटामेरिज्म। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाएगा आपका लास्ट, टॉटोमेरिज्म। Tautomerism is a special type of isomerism in which ketoform is converted into enol form, and enol form also converted into ketoform। तो जब दोनों तरफ प्रोसेस होती है, तब यहां पर जो साइन यूज होता है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और जब ये साइन यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन में हो रही है। आगे की तरफ जो होती है इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ जो होती है उसे बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड में भी हो रही है और बैकवर्ड में भी हो रही है, तब इन दोनों के बीच में एक कंडीशन ऐसी आती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है। मतलब आगे फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी स्पीड से हो रही है उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रही होगी, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये बात आपको याद रखनी है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी तो क्या एग्जिस्ट करेगी? इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कीटो और इनॉल फॉर्म की, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। कीटो फॉर्म में आपको क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O, ये कीटो फॉर्म होती है। कीटो फॉर्म में अगर कीटोनिक ग्रुप से जुड़ने वाले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बाकी कुछ भी प्रेजेंट हो, तो ये हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ये अभी आपकी कीटो फॉर्म है। अब कीटो फॉर्म आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? C, O पर क्या आ गया बेटा? H, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। बाकी इन तीनों वैलेंसी पे कुछ भी जोड़ दीजिए आप, A B C मान ले रहे हैं हम, वो A B C एज इट इज रहेंगे। A B और C ये तीनों एज इट इज रहेंगे, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी जो बस कीटो फॉर्म है वो कीटो फॉर्म डबल बॉन्ड और OH, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, OH के लिए ऑल, तो ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, इनॉल फॉर्म इज लेस स्टेबल whereas कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। इन दोनों में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं टॉटोमर्स। इनको हम कहते हैं टॉटोमर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमर्स का मतलब होता है जो एक दूसरे में चलते रहे, मतलब जो एक जगह पे रुके नहीं। कोई भी अगर चीज एक जगह पे रुकती नहीं है तो वहां पर टॉटो वर्ड का यूज किया जाता है।
तो ये क्या होता है, ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होता रहता है, ये इसमें, ये रुकते नहीं है एक जगह पर, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए इनको हम टॉटोमर्स कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ शोइंग सेम दिस प्रॉपर्टी विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड टॉटोमेरिज। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3 हमारे पास मॉलिक्यूल हो, तो इसका टॉटोमर क्या बनेगा, इसका टॉटोमर बनेगा, एक H को आप इधर ले आइए, डबल बॉन्ड को किसी भी एक तरफ शिफ्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपने डबल बॉन्ड सपोज दैट इधर शिफ्ट किया और एक H यहां से इधर ले गए, तो यहां पर क्या बचेगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, टॉटोमर। समझ में आ गई बात। इसके बाद बेटा आपकी आ जाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दोनों चीज सेम होंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट दे आर द ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, स्पेशियल का मतलब जो चारों तरफ का अरेंजमेंट होगा एक एटम के, वो अगर डिफरेंट होता है तब हम उसे स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा बेटा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पर आ गया ईन, ब्यूटुईन। अब ये ब्यूटुईन जो है ये अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट शो करता है। जैसे मैं इस ब्यूटुईन की अगर मैं बात कर रहा हूं, C ये वाला देखो, एक C आ गया, दूसरा C आ गया, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। अब इन पे इनकी बची हुई दो वैलेंसी जो बची, इन पे हाइड्रोजन और CH3 जुड़ा हुआ है, इस पे एक हाइड्रोजन है और एक तरफ CH3 है, इस पे भी एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, तो स्ट्रक्चर तो सेम है। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी आप चेक करिए, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH3, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH3। तो जब दो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों सेम है, तब ये स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर में भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है ये आपकी 2 टाइप की हो जाती है, एक होती है जियोमेट्रिकल और दूसरी होती है ऑप्टिकल। अभी आपके सिलेबस में केवल ज्योमेट्रिकल है, तो मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब शो होती है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है तो इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी CH3 है तो इस कार्बन पर भी CH3 है। जब दोनों में सेम ग्रुप हो तब आपकी ये शो होती है। जब सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तब इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर, और जब दोनों अपोजिट होते हैं तो इसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर। और इन दोनों में ट्रांस इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होता है, और इसका रीजन जो होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो ट्रांस में कम लगता है, सिस में ज्यादा लगता है। क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, जब दो बड़े बड़े ग्रुप, बल्कि ग्रुप, बल्क का मतलब जिसमें बहुत सारे एटम्स हो, जब दो बल्कि ग्रुप एक ही साइड में होते हैं तो वो आपस में ज्यादा रिपल्सन अपोज करते हैं, और इस रिपल्सन को ही एक तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में ये रिपल्सन ज्यादा लगेगा क्योंकि दोनों बड़े बड़े ग्रुप एक ही साइड में, एक साइड में होंगे तो रिपल्सन ज्यादा लगाएंगे, जबकि इसमें दोनों बड़े वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है, जिसके चक्कर में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा। कम लगेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बात याद रखिए, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। केवल स्टेरिक हिंड्रेंस आंसर नहीं हो सकता, इट हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर सिस की बात हो कि सिस इज लेस स्टेबल बिकॉज इट हैज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आ गई बात। सिस आइसोमर इज लेस स्टेबल बिकॉज इट हैज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड ट्रांस इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये तो बात हो गई आपकी आइसोमेरिज्म की। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, मैं आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन दूं फिर आपको।